Good morning, class 4th. How are you all? I hope you all are fine at your home. So, children, welcome back to your English class. And today we are going to start chapter number 12 from your English grammar, prepositions. So, what is prepositions? Prepositions are the word which placed before a noun to show the relation between that noun and some other words in the sentence. यानी कि नाउन के साथ और जो सेंटेंस में अदर सेंटेंस होते हैं उनके बीच के रिलेशंस को बताने वाले जो वर्ड होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, प्रीपोजिशंस. जस्ट लाइक इन, ऑन, अंडर, these words are called prepositions. So now let's read more about that. Now look at these pictures. So the pen is in my pocket. So what is the place of a pen? पॉकेट. पॉकेट कहाँ पर है? पॉकेट में है. किसकी? बॉय की. सो द पेन इज इन द पॉकेट. द वॉच इज ऑन द टेबल. आई विल रीच स्कूल एट 9. Tom is laying under the table. So in the sentence given above, the words like in, on, at, under are called preposition. यहाँ पर जो आपके वर्ड हैं ब्लू कलर से जो लिखे गए हैं, in, on, under, at, these are the prepositions. So a preposition is a word placed before a noun to show the relation between that noun and some other word in the sentence. In sentence 1, in shows the relation between the pocket and the pen. यानी कि पॉकेट और पेन के बीच में रिलेशन बताने वाला जो वर्ड है वो कौन सा है? इन. इन सेंटेंस 2, ऑन शोज द रिलेशन बिटवीन द टेबल एंड द वॉच. टेबल और वॉच के बीच में रिलेशन बताने वाला जो वर्ड है वो कौन है? ऑन. सो दैट वाई ऑन इज अ प्रीपोजिशन. In sentence 3, at shows the relation between the school and the word. School और word के बीच में relation बताने वाला जो word है वो कौन सा है? at. So at is a preposition in the sentence 3. In sentence 4, under shows the relation between the table and the Tom. Tom और table के बीच में relation बताने वाला जो word है वो है under. So under is a preposition. Now here kinds of preposition. अब हमारी किस काइंड्स ऑफ प्रिपोजिशन यानी प्रिपोजिशंस के प्रकार, कौन कौन से प्रकार की पोजिशंस होती हैं? नाउ नंबर 1, प्रिपोजिशन ऑफ टाइम. प्रिपोजिशंस ऑफ टाइम कौन सी होती हैं? यानी कि जहाँ जिन्हें हम टाइम के साथ यूज़ करते हैं. सम प्रिपोजिशन एट, ऑन, इन, बाय, सिंस, फॉर, फ्रॉम, विद, टू, अंटिल, टिल, एक्सेट्रा. ऑल दीज आर द प्रिपोजिशंस ऑफ टाइम. फॉर एग्जाम्पल, आई शैल कम एट 4 o'clock. Second, they will return at Diwali. There were no cloud in the morning. So I will do this work in a week. So the meeting will end by 3 p.m. I have been studying for an hour. So it has been raining since 1 o'clock. The show will be from 8 p.m. to 11 p.m. She will be there till 6:30. So here the words at, in, by, for, all these words are prepositions of time. ये वो वर्ड्स हैं जो कि टाइम प्रीपोजिशन किसको बताते हैं या किस चीज़ की तरफ इंडिकेट करते हैं? टाइम. जैसे कि 4 o'clock. 4 o'clock इज़ अ टाइम. दिवाली इट मीन्स अ टाइम, क्योंकि एक समय, निश्चित समय पे दिवाली आती है, एक टाइम पे आती है. मॉर्निंग एक द टाइम ऑफ अ पीरियड, यानी कि हमारे दिन का एक जो टाइम होता है, 4 पीरियड्स होते हैं पूरे दिन भर में, उनमें से जो सबसे फर्स्ट पीरियड होता है वो हमारा मॉर्निंग होता है. इट इज़ टाइम. वीक इज़ ऑल्सो टाइम. 3 इज़ PM. 3 PM इज़ टेलिंग द टाइम. An hour is telling the time. So in the preposition with the which where we use all these preposition when we talk about the time. यानी कि time के साथ हम कौन सी prepositions use करते हैं? At, in, by, since, for, from, with, to, until, till. So these are the prepositions of time. नाउ सेकेंड इज प्रिपोजिशंस ऑफ प्लेस, यानी कि जो किसी प्लेस के बारे में हमको बताती हैं. एट, इन, बिटवीन, अमंग, ऑन, अपॉन, above, over, below, under, etc. are used to show place or prepositions. Now example, he was born at Bilga. So Bilga is a name of a place. He was born in Delhi. Delhi is also the name of a place. Now here नोट फॉर यू, एट इज़ यूज विद द विलेजेस. एट हम किसके साथ यूज़ करते हैं? विलेजेस के साथ यूज़ करते हैं. और इन जो बिग सिटीज़ होती हैं उनके साथ हम इन प्रिपोजिशन को यूज़ करते हैं. दोनों ही जगहें क्या हैं? एक प्लेस के नेम है. विलेज भी हम एक प्लेस को कहते हैं और बिग सिटीज़ भी. तो कहाँ पर विलेजेस के साथ हम एट यूज़ करते हैं और सिटीज़ के साथ हम इन यूज़ करते हैं. नाउ
The bottle is in the fridge. So where is in the fridge? So fridge in the place of a fridge. So he is standing at the window. I stood is between. Here should be I stood. I stood is between the two chairs. I am happy to be among my friends. नोट, एक नोट आपके लिए यहाँ पर है कि वी यूज़ बिटवीन विद द टू पर्सन और थिंग. बिटवीन और अमंग दोनों का ही मतलब होता है बीच में, लेकिन बिटवीन हम कब यूज़ करते हैं? केवल दो जनों के साथ, यानी कि जब दो थिंग्स या दो पर्सन के साथ ही हम यूज़ करेंगे बिटवीन. और जब पर्सन या थिंग्स की जो क्वांटिटी है वो दो से ज़्यादा होती है तब वहाँ पर हम अमंग का यूज़ करते हैं. सो बिटवीन विद टू पर्सन और थिंग एंड अमंग विद मोर देन टू, यानी दो से ज़्यादा के जब बारे में बात होती है तो वहाँ पर हम अमंग का यूज़ करते हैं. द बैग इज़ ऑन द टेबल, द रैट इज़ स्प्रिंग अपॉन द शेल्फ, द माउंटेन वॉज above us there, the fan was exactly over the table, the cat is laying under the bed, there is a town below these hills. सो ऑल दीज वर्ड आर प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस, यानी कि जो किसी प्लेस के साथ यूज होने वाले प्रिपोजिशंस होती हैं वो होती हैं प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस. नाउ द प्रिपोजिशन ऑफ डायरेक्शन. द प्रिपोजिशन ऑफ डायरेक्शन इज टू, टूवर्ड्स, इनटू, एट, फॉर, अगेंस्ट, शो डायरेक्शंस. एग्जाम्पल्स: आई वेंट टू द पार्क, वी वेंट टूवर्ड्स द स्टेशन, आई स्टेप्ड इनटू द रूम, ही थ्रू अ स्टोन एट द डॉग, he left for Delhi, Raman stood against the wall. So in the direction of the station, toward हम क्या करते हैं? towards का कब यूज़ करेंगे? क्योंकि डायरेक्शन क्या है हमारी? स्टेशन की तरफ है, तो वहाँ पर हमने क्या यूज़ किया? towards. So to, towards, into, at, for, against we also use with the directions. Now prepositions of manner. Some prepositions like by, with, of, for, from, etc. show the manners, cause or reason of an action. For example, we traveled by train. The soldiers fought with courage. He died of fever. She did it for our good.